Hello, student. How are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, Chapter 7, Preservation of Our Heritage. And this is Mahesh Shah from Surat. So, you all watch my old videos for Chapter 1 to 6. In that chapters, we discuss about different kind of cultural heritage of our country. Here we are going to study about what is the importance of that and why it's need to preserve our heritage. So आज के वीडियो में हम हमारी जितनी भी हेरिटेज है हमारी कंट्री की कल्चरल हो या नेचुरल उसको क्यों प्रिजर्व और कंजर्व करना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that you will get new notification of part 2 of this video. So let's start. In this chapter we are going to study about first we start with introduction, then after what is the need for the preservation and conservation of cultural heritage, what is the necessity of that, how does the tourism industries depend on our heritage. Then after we are going to talk about measures of conservation. Afterwards archaeological sites and act. Then after we are going to study about museums of India. What is our role in the preservation of heritage. Then after some points we discuss about cleanliness at picnic spots. And finally we talk about unity and diversity of our country. And in the last of this video, there is an exercise given for your revision work. So let's start the video with the introduction. So this is our heritage. About all these monuments we discussed in our previous videos. So there is nothing to talk about all this. So as per this information, now we are understand the importance of our country. That India has a unique place in the world. There has been a remarkable contribution of India in the field of knowledge, science, religion, culture and art. तो हमने हमारे लास्ट जो चैप्टर्स देखे उसमें हमने इंडिया की हर तरह के की नॉलेज को हमने स्टडी किया, जिसमें साइंस भी आ जाता है, कल्चर भी आ जाता है, आर्ट भी आ जाता है, लिटरेचर भी आ जाता है, नॉलेज आ जाता है। तो ये सब फील्ड में इंडिया नंबर 1 था, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री। एंड जब पूरी दुनिया में बाकी सब कंट्रीज़ अनडेवलप थे तब इंडिया बहुत ही डेवलप था, वेल डेवलप्ड कंट्री। इंडिया हैज़ अ रिच एंड इनमिटेबल हेरिटेज. आवर हेरिटेज शोज एन इम्पीरियल डिग्निटी ऑफ एंशियंट इंडिया. तो हमारी जो हेरिटेज है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है वो कितना एडवांस था, कितना प्रॉस्परस था. दैट इज़ वाई वी शुड बी कमिटेड टूवर्ड द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज विच इज़ अटमोस्ट डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम. तो आज की डेट में अगर देखने जाए तो ये जितने भी पुराने मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, स्कल्पचर्स है, स्टेच्यूज़ है, that is the demand to preserve of this kind of things in present time, because they are not only the examples of our rich heritage, our prosperity, but they are also a source of income. And by that we learn about many things. We pass the message to next generation that what kind of country India was in ancient time, and we should make India once again prosperous country of the world in future. If we are having that kind of dignity in our heart, and if we are proud that we are an Indian, then it is very simply, very easily possible.
So, need for the preservation of cultural heritage. Why to save our heritage? The heritage of India is multifarious which brings glory to the nation. तो हमारी कंट्री की जो हेरिटेज है वो कोई एक फील्ड में स्पेशलिटी नहीं है, हर एक फील्ड में। जैसे साइंस देख लो, मेडिकल साइंस देख लो, एस्ट्रोनॉमी देख लो, आर्ट देख लो, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, एस्ट्रोलॉजी। तो ये सब फील्ड में हम लोग बहुत आगे थे। कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वेरियस आर्ट्स एंड नेचुरल हेरिटेज। तो कल्चरल हेरिटेज में हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं? तो उसमें स्कल्पचर को हम काउंट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर को काउंट कर सकते हैं, लिटरेचर, अलग अलग आर्ट्स जो ड्राइंग, पेंटिंग, डांस है वो, और नेचुरल हेरिटेज को काउंट कर सकते हैं। Natural and man-made factors are adversely affected our heritage, hence its preservation is required. तो नेचुरल जो भी हमारे पास हेरिटेज है और मैन-मेड हेरिटेज है वो एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। यानी हमने जो भी लर्न किया वो हमने नेचर से ही लर्न किया और इसी हिसाब से हमने डेवलपमेंट किया। तो अब जब ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स का, तो इसका प्रिजर्वेशन दैट इज़ अवर मोरल ड्यूटी। आवर हेरिटेज ग्लोरीफाइज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, सो दे रिस्पेक्ट आवर हेरिटेज बाय एसोसिएटिंग इन इट विथ देयर ओन आइडेंटिटी। तो हमारी कंट्री का जो हेरिटेज है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं। हमारे जो एंशियंट लोग थे उनका टैलेंट क्या था वो हमें दिखाता है और पूरी दुनिया को ये एक्सप्रेस करता है कि इंडिया वॉज नॉट वर्थ कंट्री इन द हिस्ट्री, इंडिया वॉज प्रॉस्परस एंड वेल डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। सो इसको रिस्पेक्ट देना, इसको जस्टिफाई करना, दैट इज़ आवर आइडेंटिटी। ये हमारी पहचान है कि जब हम दुनिया में कई और कंट्री में जाएंगे या कोई और कंट्री के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वी शुड प्राउड दैट वी आर एन इंडियन। हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई हमारी कंट्री में जब आपकी कंट्री का नाम भी नहीं था तब हमारी कंट्री में इतने सारे आर्ट्स थे। सो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ प्राउड। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इस मैनेजमेंट। तो हमें फिर ये नहीं सोचना है कि पुराना कंस्ट्रक्शन है चलो इसको तोड़ दो या इसको ख़राब करो, नहीं। वी शुड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और मैनेजमेंट में हमें पार्ट लेना है। अब डायरेक्टली या ऑफिशियली अगर हम नहीं ले सकते पर हमारे आजू बाजू में क्लीनलीनेस रखें, या तो हम कोई स्पॉट पे जाए घूमने के लिए तो वहाँ पे हम ध्यान रखें। अगर कोई अदर पर्सन डैमेज कर रहा है तो हम उसको रोकें, या तो कोई ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है तो उसको हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हैं। वी शुड प्रिजर्व vanishing art and architecture so that upcoming generation can be inspired by the works done by our ancestors। तो अगर हम ये हमारे हेरिटेज को संभाल के रखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो पॉसिबल है कि अब आगे जो जनरेशन आने वाली है वो वहाँ से इंस्पायर्ड हो, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले और हो सकता है कि वो फ्यूचर में कुछ ऐसा इन्वेंट करे, डिस्कवर करे जिससे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। इंडिया बिकम्स नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एज वी आर not much aware about the preservation of our heritage and our negligence is chiefly responsible for its degradation. Therefore, it has become necessary to preserve our heritage। तो कभी हमारी अवेयरनेस की कमी की वजह से, कभी हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, अवॉइडनेस की वजह से हमारी जो हेरिटेज है वो डिग्रेड हो रही है, यानी डैमेज हो रही है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करें। एंड दैट इज़ द रीज़न, ये जो नीड है इसको प्रिजर्व करने की, उसका रीज़न ये है हमारी लेक ऑफ द अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंस टूवर्ड्स आवर हेरिटेज। और इसके लिए ये आपके सिलेबस में सब पढ़ने में आता है कि एज ए स्टूडेंट इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स देन यू विल प्रोटेक्ट योर हेरिटेज इन फ्यूचर। नाउ व्हाट इज़ द नेसेसिटी of preservation and conservation?
preservation of cultural heritage. So our heritage is the identity of the nation. हमारी जो हेरिटेज है वो हमारी कंट्री की आइडेंटिटी है. जैसे ताजमहल देखने के लिए काफ़ी फॉरेनर्स हर साल आते हैं, वैसे इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस है जो हमने लास्ट देखी. अजंता इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, साउथ के टेम्पल्स, खजुराहो के टेम्पल्स. तो ये दिस इज़ आवर आइडेंटिटी ऑफ आवर नेशन. द कंट्री विच इग्नोरेंस इट डज नॉट हैव एनी फ्यूचर एज हेरिटेज इज़ आवर गाइड. तो यहाँ से ये हेरिटेज को हमने जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि भाई पहले के ज़माने में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसे रूलर्स थे, कैसे लोग थे, उनकी हैबिट्स क्या थी, उनकी डिज़ायर्स क्या थी. और इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है. अब अगर हम इसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फिर हमारी कंट्री का फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा. The errors we have committed in the past can be rectified in the present and we can properly plan for the future. तो हमने जो हिस्ट्री में हमारे पास्ट में जो भी मिस्टेक की है उसको हम प्रेजेंट में समझ के फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं. वी मेक अवर फ्यूचर ब्राइट. और ये तभी पॉसिबल है जब हमें हमारी मिस्टेक पता चले, और मिस्टेक तभी पता चलेगी जब हिस्ट्री पता चले. और हिस्ट्री, ये सब मोनूमेंट्स, ये जो हेरिटेज है वहाँ से हमको पता चलेगी. अदरवाइज़ अगर हमारे पास कुछ लिटरेचर नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम हिस्ट्री में कौन थे और हमने क्या मिस्टेक की थी. जैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में आया. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑन अस? लैक ऑफ द यूनिटी. अब जब हमें हमारी ये मिस्टेक पता चली कि हमारी यूनिटी ना होने की वजह से ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर गए, तो हम अभी प्लान कर सकते हैं कि भाई अब हमें यूनिटी से रहना है. रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स थॉट की वजह से एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है. और इस तरह से हम कंट्री की इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारी कंट्री को और पावरफुल बना सकते हैं. पर जब हमारे पास ये रिकॉर्ड है तो हम ये प्लान कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर हमें पता ही नहीं होता, अगर हमारे पास हमारी हिस्ट्री की कोई डिटेल ही नहीं होती तो हम फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते थे. हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट. हमारी हेरिटेज हमें गाइडेंस देती है कि हमें कौन से डायरेक्शन में डेवलप करना है. हेरिटेज इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री. अब जब हमें पता चला कि 2500 ईयर्स या 3000 ईयर्स पहले हमारा मेडिकल साइंस कितना एडवांस था, तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई वो टाइम में जब एडवांस था तो अब क्यों हम पीछे हैं. हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं. जब हमें पता चला कि भाई मोस्टली जितना भी मैथ्स पूरे वर्ल्ड में है वो हमारी कंट्री में इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, तो हम इसके रिगार्डिंग सोच सकते हैं. और इसके लिए ये नेसेसरी है कि हम हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करें. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. फिर जो भी हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेजेस के प्लेसेस है उसमें क्या डैमेज हुआ, इसको पीपल को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं. नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द कॉमन पब्लिक शुड play their vital role for the protection of our heritage. So this is not only the responsibility of the government. We should also be a part of this process. We should also protect our all the heritage as it is our moral duty. As the heritage is considered as an idol for the people, it is necessary to cease its degradation. तो ये जितने भी हेरिटेज है वो हमारे लिए आइडल हैं और इसके लिए हमें इसका डिग्रेडेशन, जो डैमेज हो रहा है, उसको रोकना चाहिए. ग्रेटर डैमेज हैज़ बीन डन टू आवर हेरिटेज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ फॉरेन ट्राइब्स एंड आवर अनअवेयरनेस. ज़्यादातर जो हिस्ट्री में डैमेज हुआ वो फॉरेन इन्वेंटर्स आए, जो दूसरे लुटारू थे दूसरी कंट्री के, वो आए हमारी कंट्री में, मुगल्स और ये सब. तो उन्होंने डैमेज किया. और उसके साथ हमारा अनअवेयरनेस यानी लैक ऑफ द नॉलेज, इम्पोर्टेंस,
वो भी साथ में फैक्टर इफेक्ट कर गया. So it is the moral duty of the government as well as of common people to conserve and preserve our heritage. तो ये एक्चुअली हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम हमारी जितनी भी हेरिटेज है उसको हम प्रोटेक्ट करें. जैसे हमारे घर में हम सभी चीज़ें संभाल के रखते हैं, उसको अगर कोई डैमेज करता है तो हम उसके साथ झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं. तो ये कंट्री भी हमारा घर है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ है, जितने भी मोनूमेंट्स है, जितने भी आर्किटेक्चर वर्क है, ये सब हमारा ही है. नेचुरल हेरिटेज हो या मैन मेड हेरिटेज हो, ये सब हमारा ही है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो ये नेसेसिटी है. अब टूरिज्म इंडस्ट्रीज एंड आवर हेरिटेज. तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज किस तरह ये कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के ऊपर डिपेंड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे एक ह्यूमन फैक्टर ऐसा वर्क करता है कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल टॉपिक आता है वहाँ पे अपने आप हमारा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाता है और ये टॉपिक ऐसा ही है. वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया हैव बीन accommodated in the list of the World Heritage by UNESCO. सो 32 साइट्स इंडिया की ऐसी है जो यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है. मैनी पीपल कम टू विजिट टू एक्सप्लोर एंड टू डू रिसर्च ऑन आवर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज. तो जब यूनेस्को की साइट्स पे हमारी प्लेसेस के नेम्स होते हैं तो पूरी दुनिया से अलग अलग लोग आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, यहाँ रिसर्च करते हैं. हमारे इंडिया के लोग भी रिसर्च करते हैं, उसे देखने के लिए जाते हैं. जैसे कैलाशनाथ टेम्पल है, उसके ऊपर आज भी रिसर्च चालू है कि वो टॉप से बॉटम बना था एक सिंगल माउंटेन रॉक से. सो दैट इज़ सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग थिंग ऑफ आवर आर्किटेक्चर कि भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस से टॉप तक तो इजीली बनता है, पर टॉप से बॉटम तक वो भी जब कंप्यूटर नहीं था, जीपीएस नहीं था वो टाइम पे. सो दैट इज़ सरप्राइजिंग थिंग एंड पीपल अट्रैक्ट टू वॉच एंड रिसर्च ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. दिस बूस्ट आवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज. क्योंकि जब ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे या तो हमारे कंट्री के लोग वैसे प्लेसेस पे जाएंगे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा और उसके लिए टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड होती है उसकी वजह से. Along with the economic benefits to the concerned states, tourism industries provide appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious cultural arts and traditions in front of the world. तो जिस स्टेट में ऐसे मोनूमेंट्स होते हैं, ऐसे साइट्स होते हैं, वो स्टेट में टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करती है, एक प्लेटफॉर्म बनाती है. ये हमें हमारा आर्ट, कल्चरल आर्ट और ट्रेडिशन पूरी दुनिया के सामने एक शोकेस की तरह प्रेजेंट करती है. हमारा प्रेजेंटेशन होता है हमारे नॉलेज का, हमारे टैलेंट का. अपार्ट फ्रॉम दिस, टूरिज्म ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एंड दिस कीप्स द वैनिशिंग आर्ट एंड ट्रेडिशन अलाइव. तो जैसे कोई प्लेसेस के बारे में पता चलता है, सब फ्री टाइम में वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं, वैकेशन हो या कोई पब्लिक हॉलीडे हो, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इससे एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है. और ऐसी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं वो मेंटेन रहती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. Nowadays, tourism as a subject has been added in the field of education, which is eventually promoting tourism guide as an independent business. तो अब तो टूरिज़म के ऊपर आप MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और इससे एक अलग प्लेटफॉर्म हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम रेडी कर रहे हैं. एक बिजनेस के जैसे, इंडिपेंडेंट बिजनेस के जैसे टूरिज़म इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही है. इंडिया अर्न फॉरेन करेंसी फॉर द फॉरेनर्स, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है. विजिटर्स, इंट्रोड्यूसिंग अ हेट्रोजीनियस कल्चर. तो हम हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी जो टैलेंट है उसको हम अलग अलग साइट से, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं. It enlightens the talent of our country at the international level.
इंटरनेशनल लेवल पे हम हमारी इम्प्रेशन को अच्छा कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या डेवलपमेंट हुआ था और किस तरह से हुआ था। फैसिलिटीज़ लाइक मेटल रोड, रेलवेज, वाटर, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा आर डेवलप्ड अराउंड द साइट्स ऑफ हेरिटेज। अब ऐसी कोई फेमस हेरिटेज साइट्स है तो उसके आजू बाजू के एरिया को आप देख लो। जैसे अब आप गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख लो, राजपीपला से आगे है केवड़िया कॉलोनी। अब आज से 10 साल पहले आप वहाँ विज़िट करते तो आपको पता चलता कि कैसे रोड्स थे, कैसी फैसिलिटीज़ थी। और अब आज की डेट में आप विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट हो गया है। पूरे आजू बाजू के रीजन में पक्के रोड बन गए, मेटल रोड बन गए, वाटर फैसिलिटी हो गई है, अब रेलवे लाइन का वर्क चालू है। तो इस तरह से हेरिटेज साइट्स की वजह से डेवलपमेंट भी होता है। Tourism encourages activities like photography, horse riding, boating, etc. Simultaneously provided employment to street hawker. तो जिस साइड पे आप जाते हो, जो भी प्लेस पे आप जाते हो, वहाँ पे अलग अलग और एक्टिविटीज़ होती है। हॉर्स राइडिंग है, फोटोग्राफी है, बोटिंग है। तो वहाँ के जो लोकल वर्कर हैं उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Varied culture, indigenous art and their features have got a proper platform for the development. और इस तरह से हमारी कंट्री के कल्चर की वजह से उसके जो फीचर्स है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एक इमेज बना सकते हैं। अब इसके लिए मेजर्स क्या है कि गवर्नमेंट ने और हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग हैं, वाई कंजर्व, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चरल, ये यहाँ पे सब डिटेल्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, क्यों इसको प्रिजर्व करना है, एम क्या है इसका। और ये पूरा एक ग्राफ है कि इससे किस तरह से बेनिफिट मिलता है और कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये जितने भी आप स्लाइड्स देख रहे हो ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व, एफर्ट्स मेड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आर गिवन। फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूट द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952 टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिश किया था। अब ये जो है आपको टेक्स्ट बुक में रिमार्क कर देना है, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स with material for the conservation of wildlife. It suggests government for the development of national park, bird sanctuary and geological gardens along with the task of creating awareness for protection of wildlife. तो ये जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि कौन से रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, कहाँ पे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करना है, कहाँ पे जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाने हैं। और इससे एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाके कोई भी एनिमल को ऐसे मार नहीं सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन 1972 गेव अ फिल्म स्टेटस टू द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स। सो ये एक और एक्ट बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। इसने डिफाइन किया कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायो रिजर्व्स कौन से एरिया है। न्यू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश। और नए नेशनल पार्क बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी, बायो रिजर्व पार्क बने। द लॉ ऑफ आवर कंट्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज हैव अ वाइड पर्सपेक्टिव। तो हमारे जितने भी लॉज है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हमारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल से स्टडी की गई है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेनिशिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं। But due to the lack of the knowledge and somehow corruption effect on this, and that is why degradation is continuously increase in our country. But this is depend on we, that
If we are aware, then we can protect our natural as well as cultural heritage of our country. Apart from government, there are several societies and organizations which have been actively taking up the task of protection of wildlife and environment. तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ये फील्ड में वर्क करते हैं और एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के कांस्टेंट ट्राई करते हैं. The Bombay Natural History Society is the oldest one of its kind and was established in 1883. तो ये जो प्रोसेस है वो 1883 से हमारी कंट्री में चालू हो गई थी. और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन. तो ये सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी है जो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए वर्क करती है और ये 1883 में एस्टेब्लिश हुई थी. प्रेजेंटली गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब एक्सेट्रा इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग नोबल वर्क ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, जिसमें एक है गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब. आप इसके मेंबर भी बन सकते हो और इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. आपको साइट्स पे विजिट कराते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी more betterly and you become a good citizen in future if you are joining this kind of NGOs and work not for the selfishness but work for the social welfare. Realizing the importance of the preservation of our heritage, constitution's framers made it mandatory that it should be included in our constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में सोचा और उन्होंने भी बहुत सारी जो फैक्टर्स थे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया, मैंडेटरी इन्वॉल्व किया. उसमें से एक है एंशियंट मेमोरियल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट जो 1958 में बना था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया है कि कौन से मॉन्यूमेंट्स है और किसको मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं. और ये है जो एक्ट पास हुआ था उसकी कंडीशंस, क्या कंडीशंस है इसकी. तो ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. ये ईयर जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है. तो the more dangerous and harmful factors arose in the way of heritage, the more strict actions and efforts were made time to time for preservation. Hence, various protective measures have been taken for the safeguard of heritage. जैसे एक आप समझ लो कि ताजमहल, तो ताजमहल के आजू बाजू आगरा में इतनी सारी फैक्ट्रीज थी, तो उसके स्मोक के वजह से जो वाइट मार्बल है वो ब्लैक होने लगा था. तो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया वहाँ के आजू बाजू के एरिया की जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनको वहाँ से बंद करके अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ताजमहल इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री. इफ ताजमहल इज़ डैमेज then it spoil whole the impression of our country, and that is why it is necessary to preserve this kind of monuments. Ancient monuments and archaeological sites and remain act was enacted in 1958. हाँ सॉरी, मैंने आपको बोला था कि ईयर डिस्क्राइब नहीं है पर ईयर भी डिस्क्राइब्ड है. तो ये जो एक्ट है वो 1958 में इनेक्टेड हुआ था. दिस एक्ट सजेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंटिक artistic work, religious places, historical memorials and archaeological sites etc. यानी ऐसे कोई भी एंटिक आर्टिस्टिक वर्क है या तो रिलीजियस प्लेसेस है या तो हिस्टोरिकल मेमोरियल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो वहाँ पे आप कुछ भी डैमेज करोगे तो वो क्राइम होगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट. डिपार्टमेंट of archaeological is responsible to look after the preservation of this monument. तो इंडिया ने खुद भी हमारी कंट्री की बहुत सारी साइट्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल उनकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. However, these heritage sites will not be preserved just by framing laws, but it becomes moral responsibility of every citizen. तो गवर्नमेंट चाहे कितने भी लॉज बना दे
पर अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। Department of Archaeological maintains sites of heritage which are either destroyed or on the verge of destruction. तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेंटेनेंस साइट ऑफ हेरिटेज वो डिस्ट्रॉय हो गई है या तो डिस्ट्रक्शन के कगार पर है। अब इसके पीछे रीज़न हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। While taking up the work of maintenance of monument, one should keep in the mind that they should be preserved in such a manner so that it retains its original shape, size and condition intact. तो जब भी ऐसी कोई हेरिटेज साइट्स का मेंटेनेंस वर्क हो तो मेंटेनेंस वर्क करने वालों को पता होना चाहिए कि वो इस तरह से वर्क करे जिससे जो भी मोनूमेंट्स है उसकी ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ मोर देन 5,000 monuments and sites under its protection. Sangameshwar temple and Pampanasam temple in Andhra Pradesh were going to be submerged into the sea due to the construction of Nagarjun Sagar multi-purpose project. Therefore, this temple have been successfully shifted to Alampur at Mehboob district of Andhra Pradesh. तो जैसे कभी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम बनाना, तो ये ड्यूरेशन डैम के रिजर्वियर एरिया में, पीछे वाले एरिया में पानी की क्वांटिटी बढ़ती है, water level increase, and due to that some portion of the land submerge into that kind of reservoir. Now before plan out about all this kind of big multi-purpose project, government should study the adverse effect of that. अब ऐसे कोई टेम्पल या साइट्स जो है वो सबमर्ज होने वाली है तो गवर्नमेंट को उनको उनकी प्लेस चेंज करनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के ऊपर जब नागार्जुन डैम बना तो वहाँ पे संगमेश्वर मंदिर और पापनासम मंदिर ये सबमर्ज होने वाले थे, पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से शिफ्ट किया आलमपुर और इस तरह से उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Air pollution caused by Mathura oil refinery and fast growing nearby industries turned the white marble pale and dull. तो जैसे मैंने अभी बोला कि मथुरा के आजू बाजू और आगरा के आजू बाजू की जो इंडस्ट्रीज थी उसके स्मोक की वजह से ये वाइट मार्बल जो है वो डल होने लगा था। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल टुक सुटेबल स्टेप्स टू क्लोज द इंडस्ट्रीज स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन इन इट्स नेबरहुड। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने उसके आजू बाजू में जो भी इंडस्ट्रीज थी जो एयर पॉल्यूशन स्प्रेड कर रही थी उनको बंद करवा दिया। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हैज़ ब्रॉट बैक द ब्राइटनेस ऑफ द ताजमहल। फिर उसके मेंटेनेंस में ज़्यादा अवेयरनेस आई, रेगुलर उसको मेंटेन किया जाता था, क्लीन किया जाता था और इसकी वजह से आज वापस ताजमहल जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देता है, जिससे बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के म्यूज़ियम्स के बारे में बात करेंगे, जिसके आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है, पर यहाँ पे मैं आपको वो सब म्यूज़ियम्स के पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जो जिससे आपको पता चले कि कौन सा म्यूज़ियम कैसा दिखता है और कहाँ पे है। तो I hope that you like the video. As I told you in the beginning of the video, subscribe the channel for the new part when I upload new part. If you press the bell icon, then ultimately you get the notification that part 2 is uploaded. And share the videos on your social media sites, Facebook, Instagram, etc. Till then, stay home, stay safe, God bless you. If you are having any question, then you can text me your suggestion. I am waiting for your suggestions also. And you please give your review, positive review about the video.
Thank you very much. God bless you.